السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سد تلاوت کا بیان۔ سد تلاوت کی تعداد۔ مسئلہ نمبر 1، قرآن شریف میں 14 سد تلاوت ہے۔ جہاں جہاں کلام مدی کے کنارے پر سدا لکھا رہتا ہے اس آیت کو پڑھ کر سدا کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اس کو سد تلاوت کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1 کا خلاصہ یہ ہے، سد تلاوت جس کی آیت کی نشانی و علامت یہ ہے کہ اس میں سین، جیم اور دال یہ لفظ مختلف شکلوں میں لکھا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ آگے اگر رکوع کی آیت نہ ہو، را کاف عین واسجدی ورکعی، اسی رکوع کی آیت نہ ہو، صرف اس طرح کی آیت ہو جس میں سین، جیم، دال کا لفظ ہے، تو وہاں قرآن شریف میں آپ دیکھیں گے سائڈ پر بھی لکھا ہوتا ہے اور جہاں آیت ہوتی ہے وہاں بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ آیت پڑھنے کی وجہ سے سد تلاوت واجب ہوتا ہے۔ تو سین، جیم، دال والی آیت کا پہلے کا ایک کلمہ یا اس کے بعد کا ایک کلمہ ملانے سے سد تلاوت واجب ہوتا ہے۔ وزد، اتنا کہنے سے سد تلاوت واجب نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے آگے پیچھے کا لفظ ملا نہ دیا جائے۔ تو سد تلاوت حنفیہ کے نزدیک یہ 14 ہے۔ تو 14 سد کرنے کا کیا طریقہ ہے جسے آگے آ رہا ہے سد تلاوت کا طریقہ۔ مسئلہ نمبر 2، سد تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سدا کرے، اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے، سدے میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھا لے، بس سد تلاوت ادا ہو گیا۔ تو سد تلاوت کا طریقہ مسئلہ نمبر 2 کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ سد تلاوت جس طرح نماز کے لیے جتنی شرطیں ضروری ہیں کہ بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ تمام شرائط کے ساتھ سد تلاوت اگر ہم بیٹھے بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں تو بیٹھنے کی حالت ہی میں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ باندھے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سدے میں چلے جائے اور سدے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، یا کوئی بھی قرآن حدیث کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ دعا کو پڑھنے کو بہتر لکھا گیا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائے، سد تلاوت ہو گیا۔ کھڑے ہو تو کھڑے کے بھی جا سکتے ہیں، اور سد تلاوت کرنے کے بعد کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ گئے سد تلاوت ہو گیا۔ اور سد تلاوت ایک ساتھ میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی روزانہ ایک قرآن شریف ختم کرتا ہے، 2 دن میں، 3 دن میں کرتا ہے، ہفتے میں کرتا ہے، روزانہ ایک منزل پڑھتا ہے، جس وقت سد کی آیت پڑھی گئی اسی وقت سدا کرنا ضروری نہیں۔ سد تلاوت بعد میں یاد رہنے کی پوری امید ہے، ظن غالب یقین ہے کہ بعد میں کر لوں گا، تو ایک ساتھ میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور بھول جانے کا اندیشہ ہے تو بہتر یہی ہے کہ سد تلاوت فوراً کر لیا جائے تاکہ بھول نہ جائے۔ مسئلہ نمبر 3، بہتر یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سدے میں جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے۔ اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر سدے میں جائے پھر اللہ اکبر کے بیٹھے بیٹھے کھڑا نہ ہو تب بھی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 3، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ سدے کے لیے بہتر طریقہ تو یہی ہے کھڑے ہو کر سدے میں جائے اور سدے تلاوت کر کے واپس کھڑا ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر سدے میں نہیں جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے جاتا ہے اور سدا کرنے کے بعد کھڑا نہیں ہوتا ہے، بیٹھا ہی رہتا ہے، تو بھی جائز ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے نیچے جائے، سدا کرے، پھر واپس کھڑا ہو جائے۔ جیسے چند سدے ہو تو بار بار کھڑا نہیں ہونا ہے، چند سدے واجب ہو تو بار بار کھڑا نہیں ہونا ہے، شروع میں کھڑے ہو کر جائے اور آخری سدا کر کے واپس کھڑا ہو جائے۔ آیت کا سدا پڑھنے اور سننے کا حکم۔ مسئلہ نمبر 4، سدے کی آیت جو شخص پڑھے اس پر بھی سدا واجب ہے اور جو سنے اس پر بھی واجب ہو جاتا ہے، چاہے قرآن شریف سننے کے قصد سے بیٹھا ہوا ہو یا کسی اور کام میں لگا ہوا ہو، بغیر قصد کے سدے کی آیت سن لی، اس کے لیے بہتر یہ کہ سدے کی آیت آہستہ پڑھے تاکہ کسی اور پر سدا واجب نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 4 کا خلاصہ یہ کہ سد تلاوت واجب ہونے کے 2 سبب ہیں، ایک ہے سد تلاوت آیت کا پڑھنا اور دوسرے نمبر پر سننا اور پڑھنا، یہ 2 سبب ہیں۔ ایک آدمی قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور سدے کی آیت آئی، وہ زور سے پڑھ رہا ہے، اور پاس میں کوئی آدمی کسی اور کام سے بیٹھا ہے یا تلاوت سننے کے لیے بیٹھا ہے، تو اگر جو کسی اور کام میں مشغول ہے اس کی کان میں سدے کی آیت پڑ گئی، اس سے معلوم ہے کہ سدے کی آیت ہے، یا آپ نے بتا دیا کہ سدے کی آیت آپ نے سن لی، تو اس صورت میں پڑھنے والے پر بھی سدا واجب اور سننے والے پر بھی واجب۔
अगर कोई आदमी सद्दे कुरान शरीफ की तिलावत सुनने के लिए नहीं बैठा है, आप इसी जगह पढ़ रहे हो जहां और लोग अपने कामों में मशगूल है, अगर जो कुरान शरीफ जहरन पढ़ रहे हैं और जहरन पढ़ने से उनको तकलीफ भी नहीं है, वो इजाजत देते हैं कि सद्दे की आयत आए तो उस वक्त उस आयत को आहिस्ता पढ़ना चाहिए ताकि सुनने वाले पर सद्दा वाजिब न हो जाए। हो सकता है कि वो सद्दा करने की पोजीशन में न हो, या सद्दा की आयत की सुनने की वजह से सद्दा तो वाजिब हुआ और बाद में करना भूल गया, हमारा मोमिन भाई गुनहगार न हो, इसलिए सद्दे की आयत को आहिस्ता पढ़ना चाहिए। सद्दे तिलावत के शराइ, मसला नंबर 5, जो किसी नमाज के शर्त है वो सद्दे तिलावत के लिए भी शर्त है, यानी वजू का होना, जगह का पाक होना, बदन और कपड़े का पाक होना, किबले की तरफ रुक करके सद्दा करना वगैरह, ये तमाम शराइ जो नमाज के लिए जरूरी है सद्दे तिलावत के लिए भी जरूरी है। मसला नंबर 6, जिस तरह नमाज का सद्दा किया जाता है उसी तरह सद्दे तिलावत भी करना चाहिए, उसका कोई अलग तरीका नहीं है। मसला नंबर 7, अब किसी का वजू, इससे बताया कि बाद लोग कुरान शरीफ पे इस तरह सद्दा कर लेते हैं, कुरान शरीफ रखा हुआ है और बाद औरतों को दिखा गया, बूढ़ी औरतों को सद्दे की आयत पढ़ ली, कुरान शरीफ पे ऐसे ही सद्दा कर लेती है, इस तरह सद्दे तिलावत करना सही नहीं है। सद्दे तिलावत जमीन पे करना है। हाँ कोई माजूर है, जमीन पर सद्दे तिलावत करने की कुदरत नहीं है, तो उस सूरत में इशारे से भी सद्दे तिलावत अदा हो जाएगा। मसला नंबर 7, और किसी का वजू उस वक्त न हो तो फिर किसी वक्त वजू करके सद्दा करे, फौरन उसी वक्त सद्दा करना जरूरी नहीं, लेकिन बेहतर ये कि उसी वक्त सद्दा कर ले क्योंकि शायद बाद में याद न रहे। मसला नंबर 7 का खुलासा ये, कोई आदमी जबानी कुरान पढ़ रहा है और वजू नहीं है, तो सद्दे की आयत पढ़ी, सद्दा वाजिब हो गया, उस पर सद्दा करने की पोजीशन नहीं है तो बाद में भी सद्दे तिलावत अदा कर सकता है। लेकिन हजरत मौलाना अशरफ थानी रहमतुल्लाह अलैहि हकीमुल उम्मत फरमाते हैं कि बेहतर यही है कि वजू करके सद्दे तिलावत अदा कर ले, जिंदगी का भी भरोसा नहीं, वो आदमी कोई भी मुमकिन है कि भूल जाए, इससे बेहतर और तकवा यही है कि सद्दे तिलावत जल्द से जल्द अदा कर दिया जाए। मसला नंबर 8, किसी के जिम्मे बहुत से सद्दे तिलावत के बाकी हो, अब तक अदा न किए हो तो अब अदा कर ले, उम्र भर में कभी न कभी अदा कर लेने चाहिए, कभी अदा न करेगा तो गुनहगार होगा। बहुत से लोग जो कसरत से तिलावत करते हैं, गफलत बरतते हैं, तो बहुत से सद्दे तिलावत उनके बाकी होते हैं, तो उनके लिए बेहतर ये है कि जितने सद्दे तिलावत का अंदाज़ा हो, अंदाज़ा लगाए, अपना हिसाब लगाए कि मिसाल के तौर पर मेरी इतनी उम्र हुई है, महीने में इतने ख़त्म करता हूँ, साल में इतने ख़त्म करता हूँ, तो कितने सद्दे तिलावत वाजिब है, तो उसका हिसाब लगाकर सद्दे तिलावत जल्द से जल्द अदा करने की फिक्र करें, गफलत न बरते। अगर सद्दे तिलावत जिम्मे में बाकी रह जाएगा तो उसका कोई कफारा नहीं है, कोई वसीयत आप कर नहीं सकते हो, उसकी तो वो आदमी गुनहगार होगा, और लापरवाही बरतेगा तो सख्त गुनहगार। मसला नंबर 9, अगर इसी हालत में सुना जबकि उस पर नहाना वाजिब था तो नहाने के बाद सद्दा करना वाजिब है। मसला नंबर 9 का खुलासा ये है कि सद्दे तिलावत सुनने के लिए पाक होना भी शर्त नहीं, बावजू तो क्या बागुसल होना भी जरूरी नहीं। ये औरत हाइजा है, निफास की हालत में है, आदमी जुनूबी है, उसने सद्दे की आयत सुन ली तो उस पर भी सद्दे तिलावत वाजिब है, नहा कर गुसल कर कर वो सद्दे तिलावत करना जरूरी है। मसला नंबर 10, अगर बीमारी की हालत में सुने और सद्दा करने की ताकत न हो तो जिस तरह नमाज का सद्दा इशारे से करता है इसी तरह इसका सद्दा भी इशारे से करे। मसला नंबर 10 का खुलासा ये है कि जो आदमी बीमारी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से सद्दे तिलावत जमीन पर नहीं कर सकता है तो वो इशारे से, जिस तरह नमाज का सद्दा इशारे से करता है सद्दा तिलावत भी इशारे से करे। दौरान नमाज आयत के सद्दा पढ़ने की मसाइल। मसला नंबर 11, और नमाज में सद्दे की आयत पढ़ी तो आयत पढ़ने के बाद फौरन नमाज ही में सद्दा कर ले, फिर बाकी सूरत पढ़ के रुकू में जाए। अगर आयत को पढ़कर फौरन सद्दा न किया, उसके बाद 2 आयतें या 3 आयतें और पढ़ ली तब सद्दा किया तब भी दुरुस्त है। अगर उससे भी ज्यादा पड़ गया, 3 आयत तब सद्दा किया तो सद्दा अदा तो हो गया लेकिन गुनहगार होगा। मसला नंबर 11 का खुलासा ये है, कोई आदमी
नमाज में तिलावत कर रहा था, सजदे की आयत आई, तो जैसे ही सजदे की आयत पढ़ी फौरन सजदे में चले जाए। तो आयत के बाद चले जाए कोई हरज नहीं, लेकिन 3 आयत के बाद सजदे में गया, 3 आयत के बाद, तब गुनहगार होगा। तो सजदे की आयत पढ़ते पढ़ते दौरान नमाज सजदे की आयत आ गई, तो उसके बारे में यह है कि फौरन सजदे तिलावत कर ले। अगर सजदे तिलावत उसने फौरन नहीं किया, यहाँ तक कि उसने 2 आयत और पढ़ ली, तब भी कर ले, लेकिन लिखा है कि अगर 2 आयत से ज्यादा तीसरी आयत पढ़ ली, अब सजदा किया तो सजदा तो अदा हो गया, लेकिन गुनहगार होगा। तो फौरन करना चाहिए, ये 1 आयत के बाद करना चाहिए। खुलासा ये 3 आयत के बाद तो कज़ा हो जाता है बाज़ कौल के मुवाफिक, और बाज़ों के नजदीक 3 आयत तक गुंजाइश है, 3 आयत के बाद भी कर लिया तो अदा हो गया, लेकिन 3 आयत से ज्यादा पढ़ गया तो अदा नहीं होगा। तो सद्दी की आयत 2 आयत या 3 आयत और पढ़ ली तब सद्दा किया तो ये भी दुरुस्त है, जैसा हजरत ने फरमाया 3 आयत तक भी दुरुस्त है। मसला नंबर 3, सद्दी की आयत पढ़ के अगर फौरन रुकू में चला जाए या 2-3 आयतों के बाद रुकू में ये नियत कर ले कि मैं सद्दे तिला की तरफ से भी यही रुकू करता हूँ, तब भी वो सद्दा अदा हो जाएगा। और रुकू में ये नियत नहीं की तो रुकू के बाद सद्दे वाजिब करेगा, तो उसी सद्दे से सद्दे तिलावत भी अदा हो जाएगा, चाहे कुछ नियत करे चाहे न करे। मसला नंबर 13 का खुलासा ये है कि सद्दे की आयत उसने पढ़ी नमाज के अंदर और सद्दा नहीं करना चाहता है, वो रुकू करना चाहता है। तो रुकू करना चाहता है तो रुकू के अंदर का नियत करके रुकू कर ले, और रुकू में नियत करता है यही रुकू जो नमाज का है, मैं तिलावत के सद्दे के लिए भी यही रुकू को मैं काफी समझता हूँ, इसी में नियत कर ली तो रुकू से भी सद्दे तिलावत अदा हो जाएगा। और किसी ने रुकू में भी नियत नहीं की तो नमाज का जो सद्दा है फर्ज सद्दा, उसमें चाहे नियत करे या न करे ऑटोमेटिक अदा हो जाएगा। लेकिन इमाम है, एक मसला सुन लो, अगर कोई इमाम है तो इमाम के लिए एक हरकत करना मुनासिब नहीं कि रुकू में सद्दे की आयत की तिलावत की नियत कर ले और सद्दे तिलावत न करे और रुकू में नियत कर ले। इसमें नियत जरूरी है, मुक्तदी को मालूम नहीं है कि सद्दे की आयत है तो मुक्तदी नियत करता है नहीं करता है, इसलिए इमाम ऐसा न करे। मसला नंबर 14, नमाज पढ़ने में किसी और से सद्दे की आयत सुने तो नमाज में सद्दा न करे बल्कि नमाज के बाद करे। अगर नमाज ही में करेगा तो वो सद्दा अदा न होगा, फिर करना पड़ेगा और गुनाह भी होगा। एक आदमी ने नमाज में सद्दे की आयत पढ़ी, मिसाल के तौर पर जुमा का दिन था, इमाम साहब सूरह सद्दा पढ़ रहे हैं, ये अपनी सुन्नत नमाज पढ़ रहा है, 2 रकात फजर की सुन्नत पढ़ रहा है, फजर की सुन्नत की नमाज पढ़ते पढ़ते इमाम से सद्दे की आयत सुनी तो उसके लिए हुक्म ये कि नमाज में सद्दा न करे। बाहर जो आयत, बाहर से जो सद्दे की आयत सुनी है, नमाज में सद्दा करने से अदा न होगा, कि किसी ने अदा कर भी लिया तो अदा ना होगा। उसको चाहिए कि सलाम फेर कर फिर इनफिरादी तौर पर सद्दे की ये सद्दे तिलावत करे। और मज़ीद तफसील ये है जैसे आगे आ रहा है कि रकात में शरीक होता है नहीं होता है। नमाज से बाहर आया के सद्दा पढ़ने के मसाइल। मसला नंबर 15, एक ही जगह बैठे बैठे, वो मसला जो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ आगे नहीं आ रहा है। अगर ये सूरह दहर और सूरह सद्दा इमाम साहब पढ़ते हैं, जो सूरह सद्दा के जुमा के दिन पढ़ी जाती है, सुन्नत में उसने सद्दे की आयत सुनी, उसी नमाज में तो उसको करना नहीं है, सुन्नत की नमाज में तो सद्दे तिलावत अदा करने से अदा नहीं होगा। अब ये सुन्नत की नमाज मुकम्मल करने के बाद इमाम को उसी रकात में पा लेता है जिस पहली रकात में सूरह सद्दा पढ़ी थी। इमाम सूरह सद्दा जी सद्दे की आयत में सद्दा करने के बाद खड़ा हो गया और उस रकात को इस मुक्तदी ने पा लिया, तो इमाम की किरात इसके हक में किरात है, इमाम का सद्दा इसके हक में सद्दा समझा जाएगा, लिहाजा अब उसको अलग से सद्दा करने की जरूरत नहीं। इमाम की पहली रकात पा ली तो उसका ऑटोमेटिक सद्दे तिलावत इमाम ने जो किया है उसके हक में भी समझा जाएगा। जैसे कि बहुत से लोग रुकू में आते हैं, अब सूरह फातिहा पढ़ना सूरत मिलाना तो वाजिब था, लेकिन इमाम को रुकू में पढ़ लिया तो ये हमारा पहली रकात का जो सूरह फातिहा सूरत मिलाना था वो इमाम
ने जो किया था हमारी तरफ से काफी हो जाएगा। ऐसा यहाँ भी है, जिस पहली रकात में सद्दे तिलावत की आयत पढ़ी थी, उसी रकात में इमाम को रुकू में पा लिया या क़याम में पा लिया, तो उसको अब सद्दे तिलावत अदा करने की अलग से जरूरत नहीं है। नमाज से बाहर आके सद्दा पढ़ने के मसाइल। मसला नंबर 15, एक ही जगह बैठे बैठे सद्दे की आयत को कई बार दोहरा कर पढ़े तो एक ही सद्दा वाजिब है, चाहे सब दफा पढ़ के आखिर में सद्दा कर ले या पहली दफा पढ़ के सद्दा कर ले, फिर इसी को बार बार दोहराता रहे। अगर जगह बदल गई तब उसी आयत को दोहराया, फिर तीसरी जगह वही आयत फिर पढ़ी। इस तरह बराबर जगह बदलता रहा तो जितनी दफा दोहराएगा उतनी ही दफा सद्दा करे। बहुत से जो हाफिज होने वाले तलबा होते हैं उनको ये मसला पेश आता है कि अपनी जगह पर बैठे बैठे सद्दे की आयत को याद कर रहे हैं और बार बार पढ़ रहे हैं। तो उसने पहली मरतबा पढ़ा और सद्दे तिलावत अदा कर लिया, उसी जगह पर बैठकर बार बार पढ़ रहा है तो एडवांस में जो अदा कर लिया है बाकी तिलावत चाहे जितनी मरतबा उसी आयत को पढ़ता रहे, पहली मरतबा जो तिलावत का सद्दा कर लिया बाद में पढ़ने की वजह से भी पहला ही काफी हो जाएगा। एक ही आयत को 50 मरतबा पढ़ी और आखिर में एक सद्दा कर लिया तो भी काफी है। कभी ऐसा होता अपनी जगह पर बैठे बैठे उस आयत को पढ़ा, फिर अपने साथी को जगह बदल कर सुनाने के लिए किसी और क्लास में चला गया। किसी और क्लास में इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि एक क्लास एक ही जगह के कायम मुकाम है, एक ही मजलिस के कायम मुकाम है, पूरी क्लास पूरी मस्जिद। अब वो दूसरी क्लास में सुनाने के गया, वहां सुनाया, फिर उसी आयत को उसने अपने अब्बा को सुनाया घर पे जाकर, फिर उसी आयत को किचन में जाके अपनी अम्मी को सुनाया। तो ये जितनी मतलब अलग अलग जगहों पे पढ़ रहा है तो अलग अलग सद्दे तिलावत वाजिब होगा। और एक ही क्लास में जगह बदलता रहे, एक ही मस्जिद में याद कर रहा है और जगह बदलते रहे, मस्जिद के मुख्तलिफ कोनों में भी पढ़ता रहे तो भी एक ही सद्दे तिलावत वाजिब होगा। पूरी मस्जिद, पूरी क्लास, पूरा कमरा एक ही मजलिस के कायम मुकाम है। ये मसला बड़ा अहम है। बाज जानकार भी इसके बारे में थोड़ी गफलत बरतते हैं, वो यूं समझते हैं कि जगह बदल गई तो मजलिस बदल जाती है। मसला नंबर 16, एक ही जगह बैठे बैठे सद्दे की कई आयतें पढ़ी तो भी जितनी आयतें पढ़े उतने सद्दे करे। हाँ, एक ही जगह पर बैठा है लेकिन सद्दे तिलावत की मुख्तलिफ अलग अलग आयत पढ़ रहा है। पहली मतलब 9वें पारे की आयत पढ़ी, फिर वो 13वें पारे की आयत पढ़ रहा है, फिर 14वें पारे की आयत पढ़ रहा है। तो अलग अलग पारे की अलग अलग आयत पढ़ रहा है। तो जगह अगरचे एक ही है तो एक जगह होने की वजह से ऐसा नहीं कि एक सद्दा कायम काफी हो जाएगा, बल्कि अलग अलग आयत का अलग अलग सद्दा वाजिब होगा। मसला नंबर 17, बैठे बैठे सद्दे की कोई आयत पढ़ी, फिर उठकर खड़ा हुआ लेकिन फिर चला फिरा नहीं, जहां बैठा था वहीं खड़े खड़े वही आयत फिर दोहराई तो एक ही सद्दा वाजिब है। कभी होता है बैठे बैठे तिलावत कर रहा है, नींद आ रही थी, यहाँ बातें कर रहा था, उस्ताद ने खड़ा कर दिया, अब खड़े खड़े वही आयत को दोहरा रहा है तो एक ही सद्दा वाजिब होगा। मसला नंबर 18, एक जगह सद्दे की आयत पढ़ी और उठकर किसी काम को चला गया, फिर उसी जगह आकर वही आयत पढ़ी, तब भी 2 सद्दे करे। एक जगह सद्दे की आयत पढ़ी, उठकर किसी और काम के लिए जा रहा है, तिलावत के काम के लिए नहीं जा रहा है, किसी और काम के लिए जा रहा है, तो काम से फारिग होकर वो आया और दोबारा उसी आयत को उसी क्लास में पढ़ा तो अब 2 सद्दे करने पड़ेंगे। हुक्मन मजलिस बदल गई। अगर जो क्लास तो वही है जहां उसने पहली मतलब आयत पढ़ेगी, फिर किसी और काम के लिए पानी पीने के लिए चला गया, खाने के लिए चला गया, आराम करने चला गया, फिर उसी क्लास में आकर दोबारा उसी आयत को पढ़ रहा है तो अब 2 सद्दे करे हैं क्योंकि हुक्मन मजलिस बदल गई है। तो अब एक आयत को 2 मरतबा पढ़ने से 2 सद्दे करेगा। मसला नंबर 19, एक जगह बैठे पड़े सद्दे की कोई आयत पढ़ी, फिर जब कुरान मजीद की तिलावत कर चुका उसी जगह बैठे बजे किसी और काम में लग गया, जैसा खाना खाने लगा, उसके बाद फिर वही आयत उसी जगह पढ़ी, तब भी 2 सद्दे वाजिब हुए। जब कोई और काम करने लगा तो ऐसा समझेंगे कि जगह बदल गई। मसला नंबर 19 का खुलासा ये है, किसी ने सद्दे की आयत
एक ही जगह पर बैठे बैठे पढ़ी। आजकल का मसला ये है कि दरमियान में फोन आ गया, फोन रिसीव कर लिया और बात कर ली, बात करने के बाद फिर उसी आयत को दोबारा पढ़ा। तो अब 2 सजदे वाजिब होंगे, क्योंकि अगरचे जगह तो वही है, लेकिन अब ये बात करने के बाद, खाना खाने के बाद, 3 पानी पीने के बाद अब उसी आयत को पढ़ रहा है, तो हुक्मन मजलिस बदल गई। लिहाजा कुछ काम करने के बाद उसी आयत को पढ़ा है तो अगरचे मजलिस एक हो, लेकिन तो दूसरी मरतबा पढ़ा तब 2 सजदे करने पड़ेंगे। मसला नंबर 20, एक कोठरी या दालान के एक कोने में, दालान में बड़ा लंबा कमरा जिसमें मेहराबदार दरवाजे होते हैं, महल नुमा कमरा। एक कोठरी या दालान के एक कोने में सजदे की कोई आयत पढ़ी, फिर दूसरे कोने में जाकर वही आयत पढ़ी, तब भी एक सजदा काफी है, चाहे जितनी दफा पढ़े। अलबत्ता अगर दूसरे काम में लग जाने के बाद वही आयत पढ़ेगा तो दूसरा सजदा करना पड़ेगा। फिर तीसरे काम में लगने के बाद अगर वही आयत पढ़ी तो तीसरा सजदा वाजिब होगा। मसला नंबर 20 का खुलासा ये है कि बड़ी कोठरी हो, बड़ा रूम हो, बड़ी मस्जिद हो, मुख्तलिफ कोने में उसी आयत को पढ़ रहा है, चलते चलते पढ़ रहा है, अलग अलग कोनों में पढ़ रहा है, तो एक ही सजदा वाजिब होगा। पूरा महल, पूरा बड़ा कमरा, पूरी मस्जिद एक ही मस्जिद के हुक्म में, जैसा इसके पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन ये आयत पढ़ने के बाद किसी काम में लग गया, खाना पीना, बातचीत करना, सो जाना, फिर उसी आयत को उसी मस्जिद उसी कमरे में पढ़ रहा है तो 2 सजदे करने पड़ेंगे। तीसरे काम में लगा, फिर उसी आयत को पढ़ा, तीसरे काम करने के बाद वो 3 सजदे करने पड़ेंगे। मसला नंबर 22, मस्जिद का भी यही हुक्म है जो एक कोठी का हुक्म है। अगर सजदे की आयत, एक आयत पढ़ी कई दफा पढ़े तो एक ही सजदा वाजिब है, चाहे एक ही जगह बैठे बैठे दोहराया करे या मस्जिद में इधर उधर टहल टहल कर पढ़े। मस्जिद में चलते चलते पढ़ रहा है तो पूरी मस्जिद जब एक मस्जिद के हुक्म में है, जितनी मरतबा पढ़ेगा एक ही आयत को एक ही सजदा वाजिब होगा। मसला नंबर 23, नमाज में सजदे की एक ही आयत को कई दफा पढ़े तब भी एक ही सजदा वाजिब है, चाहे सब दफा पढ़ के आखिरी में सजदा करे या एक दफा पढ़ के सजदा कर लिया तो उसी रकात या दूसरी रकात में वही आयत पढ़े। ये मसला भी पेश आता है, खासतौर पर हुफ़ाज़ किराम, सजदे की आयत पढ़ी और कोई गलती गई, आगे की आयत नहीं आ रही है तो दोबारा उसको दोहराया, 2 मरतबा सजदे की आयत पढ़ी तब भी एक ही सजदा वाजिब होगा। यहाँ पे सजदे तिलावत कर लिया, अब खड़ा होकर आगे की आयत याद नहीं आ रही है तो ऊपर से पढ़ा तो वही सजदे की आयत दोबारा पढ़ी, तो दोबारा पढ़ने की वजह से दूसरा सजदे तिलावत वाजिब नहीं होगा, जो पहला कर लिया वही काफी हो जाएगा। इससे बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लो हुफ़ाज़ किराम दूसरी मरतबा आयत को दोहराते हैं, रुकमा देते हैं और नाराज होते नमाज के बाद कि तुमने सजदे की आयत दोबारा क्यों पढ़ी, 2 सजदे वाजिब हो जाएंगे। तो एक ही सजदा, एक नमाज एक ही मस्जिद से कायम मुकाम है, चाहे रकात बदलती रहे। मसला नंबर 24, सजदे की कोई आयत पढ़ी और सजदा नहीं किया, फिर उसी जगह नीयत बांध ली और वही आयत फिर नमाज में पढ़ी और नमाज में सजदे तिलावत किया तो यही सजदा काफी है, दोनों सजदे उसी से अदा हो जाएंगे। अलबत्ता अगर जगह बदल गई हो तो दूसरा सजदा भी वाजिब है। मसला ये बता रहे हैं कि सजदे की आयत पढ़ी, नमाज के बाहर तिलावत की, उसी आयत को वो दोबारा नमाज में पढ़ रहा है तो नमाज का सजदा कवी है, तो नमाज का सजदा कवी है तो नमाज के बाहर जो सजदे की आयत पढ़ी थी अब नमाज में मस्जिद से बदल जाती है, लेकिन नमाज का सजदा इतना कवी है कि उस कवी मजबूत सजदे से नमाज से बाहर पढ़ा जाने वाला उसी आयत का सजदा काफी हो जाएगा। गोया 2 मरतबा आयत पढ़ रहा है, एक मरतबा आयत नमाज के बाहर पढ़ रहा है, एक मरतबा नमाज के अंदर पढ़ रहा है। नमाज के अंदर का सजदा की आयत पढ़ना और सजदा कर लेना दोनों तरफ से काफी हो जाएगा, नमाज के बाहर वाले की तरफ से भी और अंदर वाली तिलावत की तरफ से भी। अल्लाह से हमारे मसाइल को समझने की, अमल करने की, उम्मत तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम को इखलास इस्तिकामत अता फरमाए, कोई सुनने सुनाने को अपनी रजा का जरिया नजात बनाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।